कैंसर इतनी जटिल समस्या थी कि ऑपरेशंस के बाद भी कैंसर वापस आ जाता था। कई पेशेंट्स हमारे ऐसे थे जो कि बिल्कुल लगभग मृत ओपीडी में आए हैं, बिल्कुल स्ट्रेचर पर आए हैं और अगली विजिट में आप पहचान नहीं पा रहे कि कोई चलते फिरते आ रहे हैं। क्या स्लीप का कैंसर में भी कुछ रोल है? अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं करेगा और कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी से भी कैंसर हो सकता है। अगर इम्यूनिटी काम ना करे तो फिर हर बंदे को कैंसर होगा। क्या ल्यूकीमिया बच्चों में आज की डेट में कॉमन होता जा रहा है? Imagine sitting in a doctor's life and hearing the words that will change your life forever. You have cancer. This will flood in emotions into your life like fear and uncertainty और बहुत कुछ. While the treatment focuses on the body, who heals the mind? Welcome back to the Gut Feel Show, an initiative to increase mental health awareness and break stigmas. Today's podcast is powered by Iris Life Sciences and we are honored to welcome Dr. Ajay Gupta, a leading medical oncologist with over 15 years of experience. जिन्होंने ना ही बहुत सारे लोगों को कैंसर ट्रीट किया है बट उनकी मेंटल बैटल्स में भी उनकी मदद करी है. From AIMS, Delhi to international fellowships in Canada, the US and the UK, his expertise have saved the lives while his compassion has changed them. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे the emotional toll of cancer, the fears patients rarely talk about, and why healing must go beyond just medicine. Join us while we welcome Dr. Ajay Gupta to the Gut Feel Show because true recovery should be both physical and emotional. Hello sir, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? I'm fine, absolutely fine. It's wonderful to be on the Gut Feel Show. I've heard a lot about it and I hope it does benefit the audience as well. Yes sir. सर हम स्टार्ट करेंगे by understanding cancer. आपकी पहले तो मुझे समझना है कि आपकी जर्नी अभी तक अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. आपने कहाँ से पढ़ाई करी है एंड व्हाट हैव यू लर्नड सो फार, व्हाट आर यू डूइंग टुडे. फिर हम घुसेंगे डीपर लेयर्स ऑफ कैंसर में. Well, I was a student in Delhi in a public school in Delhi, and my father was father is an army officer, and I was interested in joining the army or becoming an engineer. My father said that this is the field to go in, and so I got into IIT, special class level apprentice, and other engineering disciplines also. But my father said medicine is the way to go, and then I realized when I got into the college, initially the acceptance was not good, but when I got into the subjects, then it became really fascinating. ये नहीं था कि वो बुकिश नॉलेज है. डिजीजेस एक तरह से नहीं आती हैं. एक डिजीज 100 तरीके की प्रेजेंटेशन लेकर आती है और शरीर पूरा ऊपर से नीचे तक आपके सामने. अगर आपके माइंड में डायग्नोसिस नहीं है या आपको पता नहीं कि क्या करना है तो आप सारी इन्वेस्टिगेशंस करा लेंगे, सारी ट्रीटमेंट्स दे देंगे, पर आप टारगेट हमेशा मिस करेंगे. तो it became a very good fascinating quiz which compensated for all that my friends who were in IIT, IAS or other subjects they were earning 20 times more than me. So I still tell my viewers, if you are only interested in service and participating in this excellent quiz, then you join medicine. Yes. If you think you will earn money, then there are much better avenues for earning money these days. Absolutely. I think that वहाँ पे ना ethics भी खो जाता है कई बार. Yeah. अगर आप मनी और मेडिकल को मिक्स करते हो, ethics पे डैमेज हो जाता है. Yeah, ethics get damaged and your knowledge gets damaged. Yes. क्योंकि एक सिक्स सेंस चाहिए होती है आपको डिजीज डायग्नोस करने की और ट्रीट करने की. वो अगर सिक्स सेंस आपकी क्लाउड हो गई तो फिर आप बिल्कुल रेगुलर ट्रांजैक्शनल वे में आप काम करोगे और उससे आपको आपके पेशेंट्स ठीक नहीं होंगे और आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. बिल्कुल नहीं आने का ज़्यादा चांस है. बहुत ब्यूटीफुल बात बोली है. एक्चुअली मेरे फादर भी यही चीज़ बोलते हैं, मेरे ENT सर्जन. ये जो सिक्स सेंस वाली आपने बात बोली है ना, आज की डेट में ट्रांजैक्शनल होते जा रहे हैं लोग, बट ये जो सिक्स सेंस वाले डॉक्टर्स होते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ डॉक्टर्स हैं. आई थिंक इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करिएगा. आप सिक्स सेंस से क्या कहना चाह रहे हैं? सिक्स सेंस का मेरा मतलब है कि आपने एक चीज़ पढ़ी और उसको आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है. सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास है, सारे लोग एक ही कॉलेज से निकले, पर तब भी इतना डिफरेंस क्यों है हर एक में. इसका एक बहुत सिंपल एनालॉजी है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है और एक ही रोड है जिस पे चलानी है, कोई एक्सीडेंट कर देगा, कोई पहले मोड़ पे कर देगा, कोई गाड़ी बम्प कर देगा और कोई बहुत बढ़िया तरीके से चलाएगा. तो बढ़िया चलाने वाले को सिक्स सेंस है. आपको चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस भी रास्ते में मिल सकती हैं, तो आप कैसे ओवरकम करते हो, आप एंटीसिपेट कर पाओ और थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस को यूज कर पाओ. मतलब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रियल टाइम में बनाना आई थिंक थोड़ा सिक्स सेंस का खेल होता है. क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको कोई वो पढ़ा नहीं सकता. और अगर आपने एक्सपीरियंस बुरी तरीके से गैदर करा है तो आप
बहुत बुरे बन बहुत जाओगे एट द बुरे एंड बन ऑफ द डे। सकते हो, और अगर आपने एक्सपीरियंस अच्छी तरह गैदर करा है, अच्छे तरीके से गैदर करा है, देन यू विल बिकम अ रियल एक्सपर्ट इन योर फील्ड। यस सर। सर थोड़ा कैंसर के बारे में समझाइए, इसकी हिस्ट्री के बारे में समझाइए, कैसे कैसे क्या होता है कैंसर और कैसे उसके ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं। सो कैंसर इज बेसिकली द अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी कि आपकी जो शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित तरीके से फैलती हैं, और जब वो नियंत्रण नहीं होता उनमें तो फिर वो हर जगह फैलती हैं, और एक तरीके से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म आपके शरीर के अंदर बन गया है। तो वो आपके खून को चूसता रहता है, आपके न्यूट्रिएंट्स को चूसता रहता है, अल्टीमेटली वो इतना बड़ा बन जाता है एक पैरासाइट की तरह कि आपके शरीर को ही ख़त्म कर देता है। तो कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है। आपके जो नॉर्मल ग्रोथ मैकेनिज़्म्स होते हैं, जो सेल ग्रोथ हटाते हैं, वो चले गए हैं। तो इस चीज़ को कैंसर कहते हैं। सर यही जो आपने बात बताई, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी भी रोल प्ले करती है हुँ। कि कई बार जो जिसने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो जल्दी ट्रीटमेंट करा लेता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा फंसा रह जाता है। यहीं पे एंजाइटी और स्ट्रेस का भी क्या कैंसर एग्रीवेट करने में कहीं रोल है? कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी से भी कैंसर हो सकता है, सेल्स डिसफंक्शन कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे ही आपको पता चलता है कैंसर है तो ये और एग्रीवेट हो जाती हैं स्ट्रेस और एंजाइटी, और फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा समझाइए कैसे तो इनका रोल प्ले हो रहा है। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी हमारे शरीर को और हमारी लाइफ़्स को इतना अफ़ेक्ट करती है कि हमें खुद अभी एग्ज़ैक्ट लिंक तो डायरेक्ट लिंक नहीं बनाई कि आपका स्ट्रेस हुआ और कैंसर बढ़ा। पर मैं आपको कई वाक़ये दे सकता हूँ। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वजह से आप अल्कोहल ज़्यादा ले सकते हैं, आप स्मोकिंग ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप वो एक रिस्क बिहेवियर ले सकते हैं जो कि आपकी डाइट फैटी फूड्स या फ़ास्ट फूड्स में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वर्क प्रेशर्स में आ सकते हैं, और आप अनहाइजीनिक तरीके से जी सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो कि प्रो कैंसरस लाइफ़स्टाइल हो गया। जो एक रिलैक्स्ड बंदा है, जो रिलैक्स्ड है, वो योगा फ़ॉलो करेगा, प्रॉपर फूड लेगा, अल्कोहल नहीं लेगा, क्लीन डाइट क्लीन रखेगा। डाइट रखेगा, लेस लो फैट्स, एक्सरसाइज़ प्रॉपर करेगा, तो ऑटोमैटिकली उसका चांस कैंसर ही नहीं बाकी बीमारियों का भी कम हो जाएगा। तो जो स्ट्रेसफुल बिहेवियर्स पर परसिस्ट करता रहेगा, हम्म, तो कहीं न कहीं वो स्ट्रेस इम्यूनिटी को भी इफ़ेक्ट करेगा। बिल्कुल। और जब वो इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करेगा, तो मैंने आपको बताया कि इम्यूनोथेरेपी आजकल एक नई पद्धति चालू हो गई है ट्रीटमेंट की, इम्यून सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ आपके कैसे आपके इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये तो अभी भी क्लियर नहीं है, क्लियर पर नहीं। आगे शायद 10-15 साल में और क्लियर हो जाए कि स्ट्रेस का क्या कॉज़ल लिंक है कैंसर का। हम्म। क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम से जब उसका लिंक आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो कैंसर को और कैंसर रिलेटेड रिस्क बिहेवियर्स आपके ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वो कैंसर को प्रमोट ही करेंगे। और सर ये जो लोग आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या स्ट्रेस और एंजाइटी उस चीज़ में भी हैम्पर करता है, क्या उनको परेशान करता है? स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी उनको बहुत हैम्पर करता है, क्योंकि वो क्लियर माइंडेडनेस चली जाती है। पहले ये कैंसर का इंसिडेंस ज़रूर कम रहा होगा, पर बीमारी ये हमेशा ही रही है। अच्छा। और इसीलिए ही इसका नाम कैंसर भी पड़ा है, क्योंकि ये जब स्किन के थ्रू ब्रेस्ट कैंसर निकलता था, कोई कैंसर निकलता था, क्योंकि पहले तो अंदर आप देख नहीं सकते थे। जब बाहर निकलता था तो वो एक केकड़े की तरह, क्रैब की तरह निकलता था, और आप उसको जितना मर्ज़ी काटो, फिर वो और बुरी तरह वापस आ जाता था, आपको छोड़ता नहीं था। तो जो ग्रीक वर्ड क्रैब के लिए है ऑंकोस, ओह, वो ऑंकोस उससे आया है, और क्रैब, और जो साइंस को ऑंकोस बोला गया है, उसी से इंग्लिश वर्ड ऑन्कोलॉजी आया है, और जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनका नाम ऑन्कोलॉजिस्ट रखा गया है। ओह वाओ! एंड कैंसर इज़ लैटिन फॉर ऑंकोस, दैट इज़ क्रैब। क्रैब में जो लैटिन वर्ड है वो कैंसर है। तो ये वर्ड की शुरुआत ऐसे हुई, पर उसको ओह, हमेशा मुझे ही, आइडिया नहीं था इस बारे में। आई थिंक दैट थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। और ये हमेशा एक दैविक बीमारी की तरह देखा गया। और 1775 में सर पर्सिवल स्पॉट जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि जो चिमनी स्वीप करते हैं, सूट क्लीन करते हैं चिमनीज़ से, तो जो भी ये सूट आता है, उनकी पैंट्स में जमा हो रहा था और स्क्रोटल कैंसर हो रहा था उनके। तो उन्होंने एक सिंपल इंटरवेंशन सजेस्ट करी कि चिमनी स्वीपर्स रोज़ अपनी पैंट बदलें, अच्छी तरह झाड़ के, और अब नहाए-धोएँ नीचे, सारे एरिया क्लीन करें। तो तब से वो स्क्रोटल कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हो गया उनमें। तो पहली दफ़ा पता चला कि कैंसर प्रिवेंटेबल भी है, और कैंसर किसी चीज़ से भी होता है। वरना तो पता ही नहीं था कि कैंसर किस चीज़ से हो रहा है। हो गया और आप गए, ये हो रहा था। अब ये हो गया कि कैंसर है, पर एक होप मिली, और साथ-साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और उससे नए-नए आविष्कार हुए। तो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार करा। तो माइक्रोस्कोप में आप पहली दफ़ा देख सकते थे कि क्या हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वो डिटेल में देखा गया। हाँ, 17 वो भी अर्ली 18th सेंचुरी में था। और फिर 19th सेंचुरी में रॉबर्ट वर्चो ने ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर के सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर देखे। तो ये सब आविष्कार ऐड अप करते गए।
तो जब उसने वो सेल्स देखे तो उसने उसका काम ल्यूकीमिया दिया कि वाइट सेल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये ल्यूकीमिया हो गया। ऐसे ही मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार करा। तो रेडियम का आविष्कार 1890s में पहली दफ़ा स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बेसल सेल कार्सिनोमा और उसके बाद सर्वाइकल सेल कार्सिनोमा के लिए यूज़ हुआ होने लगा। तो रेडिएशन डेवलप हुई। रोएंटिजन ने डिस्कवर करे एक्स-रेज़, तो एक्स-रेज़ में आप पहली दफ़ा कुछ इमेजिंग कर सकते थे। अगर हड्डी में कैंसर फैला हुआ है या हड्डी में कैंसर आया तो आप देख सकते थे, सूजन देख सकते थे। तो ये कैंसर का तो एक्स-रे के आविष्कार से कैंसर का आप लंग कैंसर देख सकते थे कि लंग कैंसर, लंग में गोले दिख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन बढ़ गई इसकी। आइडेंटिफिकेशन बढ़ गई, तो ऐसे इंटरेस्ट बढ़ा फिर कि कैसे करना है। अब जो रेडिएशन एक दो-धारी तलवार थी, तो मैरी क्यूरी को उस वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला, उस वजह से उनका नाम आज भी याद करते हैं, मैरी और पियरी क्यूरी को। उन्होंने रेडियोथेरेपी स्टार्ट करी जिसने कि करोड़ों लोगों की अब तक जान बचाई है। पर उसी रेडिएशन ने मैरी क्यूरी को ब्लड कैंसर दिया और उनकी मृत्यु भी उसी वजह से हुई। तो कैंसर ट्रीटमेंट्स हमेशा एक दुधारी तलवार की तरह रही हैं, क्योंकि अभी तक क्योंकि जो उनका नेचर है, वो डेंजरस डिज़ीज़ से डील कर रहे हैं। तो उससे कभी-कभी डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स भी मरीज़ों को हो सकते हैं। यहाँ तो आविष्कार करने वाले को पता ही नहीं था कि रेडिएशन हार्मफुल है, तो उनको भी हो गया। तो ऐसे-ऐसे कैंसर का बढ़ा और फिर विलियम हेल्स्टेड ने ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी डिस्क्राइब करी, तो ऑपरेशंस होने लगे। हालाँकि ऑपरेशंस हमारे पुराने टेक्स्ट्स में भी अवेलेबल हैं, सुश्रुता और चरक संहिता में भी ऑपरेशंस डिस्क्राइब्ड हैं, ग्रोथ्स के और कैंसर्स के। पर विलियम हेल्स्टेड ने ब्रेस्ट कैंसर का मॉडर्न जो ऑपरेशन सिस्टम है वो शुरू करा और इस तरीके से फिर ऑपरेशंस होने लगे। पर कैंसर इतनी जटिल समस्या थी कि ऑपरेशंस के बाद भी कैंसर वापस आ जाता था। आपने ऑपरेट कर दिया, सब ठीक है, पर 6 महीने में कैंसर वापस आ रहा है। तो इसमें ये बताया गया कि कैंसर के छोटे-छोटे सेल्स जो होते हैं, वो और जगह बॉडी में फैल जाते हैं और हमें कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि ये कैंसर्स के सेल्स को हम कैसे कंट्रोल करें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पॉइज़न गैस थी नाइट्रोजन मस्टर्ड और नाइट्रोजन मस्टर्ड में ये डिस्कवर करा गया कि व्हाइट सेल्स जो सफ़ेद खून है वो जो एक्सपोज़ सोल्जर्स हैं उनका कम हो रहा है। तो इस फैक्ट को सिडनी फार्बर ने यूज़ करा कि ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया के जो कैंसर्स हैं उसमें वो नाइट्रोजन मस्टर्ड को यूज़ करा गया कि टेम्परेरी रेमिशंस यानी कि थोड़ा कंट्रोल पहली दफ़ा किसी बीमारी में पाया गया। अच्छा। तो वो पॉइज़न गैस को यूज़ करके मतलब वो एक तरीके से दैट ट्रीटमेंट इज़ बन द गया। बर्थ ऑफ कीमोथेरेपी कि ओह! आप कुछ केमिकल ड्रग्स यूज़ करके कैंसर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते थे। सो दैट वाज़ द बर्थ ऑफ कीमोथेरेपी। तो उससे एक आइडिया लगा कि लेट्स सर्च फॉर न्यू केमिकल्स। तो सुब्बाराव ने मिथोट्रेक्सेट डिस्कवर करा, जो कि एक इंडियन केमिस्ट थे और मिथोट्रेक्सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग था और उसको यूज़ करके मिंग च्यूली ने कोरियोकार्सिनोमा जो एक बीमारी थी, उसको पूरी तरह सिर्फ़ कीमोथेरेपी से क्योर करा। तो इट वाज़ द फर्स्ट डिज़ीज़ इन 1950s, इट वाज़ द फर्स्ट डिज़ीज़ व्हिच वाज़ एक्चुअली क्योर्ड बाय कीमोथेरेपी। तो उससे फिर नए-नए आविष्कारों का सृजन हुआ और नए-नए ड्रग्स का। तो जैसे साइटरबीन है, वो सीस्पॉन से मिला गया। पैक्लीटैक्सेलेट ड्रग है, वो जो बार्क ऑफ यू ट्री, जो यू ट्री होता है, उसकी बार्क से निकाला गया। और कई ट्रेडिशनल मेडिसिन से भी दवाई आई हैं, आर्सेनिक और विंक्रिस्टीन जो एक ड्रग था, जो एक सदाबहार फूल है, जो आपने हर जगह देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। उससे विंक्रिस्टीन ड्रग, जो कीमोथेरेपी का ड्रग है, वो डिराइव करा गया। ओह! और एबीवीडी एक पहला कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी था, जिससे कि हॉजकिन लिम्फोमा को क्योर करा गया। ऐसे ही जर्म सेल ट्यूमर्स जो कि टेस्टिस के ट्यूमर होते हैं, तो उनमें भी कीमोथेरेपी से क्योर करा गया। तो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन से और सब्सटेंसेस की खोज से निकाले गए। तो ये दिस लेड टू द बर्थ ऑफ कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी का दबदबा 1990s तक रहा और 2000 अर्ली 2000s तक कीमोथेरेपी का दबदबा रहा। पर यह डिस्कवर करा गया कि अकेली कीमोथेरेपी भी पूरी तरह कैंसर को इरेडिकेट करने के लिए सक्षम नहीं है हर कैंसर में। आप कीमोथेरेपी देते हैं, पर फिर भी कई कैंसर्स में बीमारी वापस आ जाती है। तो कैंसर में कुछ और भी है। तो इसकी वजह से सारी मॉलिक्यूलर मैपिंग करी गई, डीएनए स्टडी करा गया सारे सेल्स का और ये पाया गया कि डीएनए के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। कैंसर सेल्स का जो डीएनए है, वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट है और फिर उसके अंदर वो टारगेट्स आइडेंटिफाई करे गए कि कौन-सा टारगेट है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं कि ये कैंसर सेल डिवाइड करना बंद कर जाए। मतलब सोर्स पे चलना। सोर्स पे। तो क्रॉनिक माइल्ड ल्यूकीमिया एक बीमारी थी जो कि सबसे कॉमन ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर था और बेसिकली इसका मरीज़ 3 से 5 साल ज़िंदा रहता था। पहले ये हल्की तरह के से आती थी और फिर बाद में ये एक्यूट ल्यूकीमिया में यानी कि बिल्कुल ही खतरनाक रूप धारण कर लेती थी
और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 साल मरीज़ ज़िंदा रहता था और लगातार उसको इंटरफेरॉन या माइलरान ये सारी गोलियाँ खानी पड़ती थी जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते थे। और अकेली जिस पद्धति जिससे कि उसका क्योर हो सकता था वो था बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और उसमें भी अगर मैंने 100 मरीज़ों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज कर रहा हूँ, तो 7 साल बाद 40 लोग ही ज़िंदा रहते थे। वो क्योर्ड हो जाते थे पर उनके अंदर काफ़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते थे, कइयों में नहीं भी होंगे। पर 60% कीमो 60% नहीं रहते थे हमारे पास। तो एक टारगेटेड थेरेपी आई जिसका नाम था इमैटिनिब, जिसने कि रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया फ़ील्ड 2004 में। और इसकी वजह से 9 साल बाद 80% 85% लोग ज़िंदा थे इमैटिनिब पे। और इसने जो फ़ील्ड रिवॉल्यूशनाइज़ करा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की एक इंडिकेशन पूरी की जो लार्जेस्ट इंडिकेशन थी वर्ल्ड में उस टाइम, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, वो पूरी इंडिकेशन ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हट गई। तो एक सस्ती सी गोली की वजह से हज़ारों लोगों ने बेनिफिट करा और आज भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से टारगेटेड थेरेपीज़ का दौर शुरू हुआ और जेफ्टनेब एक पहले लंग कैंसर में सिर्फ़ कीमोथेरेपी होती थी और एक जेफ्टनेब एक गोली आई, तो जो लंग कैंसर में। और हाँ, मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पहली दफ़ा इसको यूज़ करा था। और कई पेशेंट्स हमारे ऐसे थे जो कि बिल्कुल लगभग मृत ओपीडी में आए हैं, बिल्कुल स्ट्रेचर पर आए हैं और अगली विज़िट में आप पहचान नहीं पा रहे कि वो चलते-फिरते आ रहे हैं। तो जेफ्टनेब और ये एर्लोटिनेब की नाम की गोलियाँ आईं और इन्होंने काफ़ी हेल्प करी कैंसर को कंट्रोल करने में। और लंग कैंसर जो कि एक बड़ा भयानक सा शब्द होता था, वो एटलीस्ट कुछ कम भयानक हुआ। अभी भी बहुत भयानक है, पर फिर भी कई पेशेंट्स में उसका रिस्पॉन्स आने लगा। तो टारगेटेड थेरेपीज़ का दौर शुरू हुआ और नसों के थ्रू भी लिम्फोमास में और कई बीमारियों में, ब्रेस्ट कैंसर में टारगेटेड थेरेपीज़ डेवलप हुई, जैसे कि हर्सेप्टिन और रिटक्सीमैब, ये सब आपने सुने होंगे। और टारगेटेड थेरेपीज़ से काफ़ी हेल्प मिली कैंसर्स में। So I think a पर mix and match है काफ़ी चीज़ों का हाँ, इस हाँ, टाइम। हाँ। तो टारगेट थेरेपीज़ और कीमोथेरेपीज़ को भी कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। पर फिर एक लिमिटेशन आ गई कि कैंसर सेल्स बड़े चालाक होते हैं, तो अगर एक रास्ता बंद होता है तो वो दूसरा रास्ता ढूँढ लेते हैं। तो टारगेट आपने एक बंद करा, तो बाकी कैंसरों में उन्होंने दूसरा रास्ता ढूँढ लिया। तो कुछ महीने तक तो दवाई काम करी, पर कुछ महीने साल बाद बीमारी वापस आ गई। तो इस शोध में अब फिर ये लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो इसमें शोध में ये पाया गया कि आपकी इम्यूनिटी से भी काफ़ी कुछ उसका लेना-देना है। और जो इम्यूनिटी का जो लिंक है, वो ये है कि अगर इम्यूनिटी काम ना करे तो फिर हर बंदे को कैंसर हो जाए। बिल्कुल। तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो एक पुलिसमैन की तरह है, जहाँ चोर दिखा वहाँ पकड़ के मार दिया, या सोल्जर की तरह है, एक ट्रेन्ड कमांडो की तरह आप कह लें कि हर एक को पकड़ के मार दिया इम्यून सिस्टम ने। पर कई दफ़ा आपका इम्यून सिस्टम धोखा खा जाता है और कैंसर को उसका अपना मित्र समझने लगता है। उसको उस पे वो हमला नहीं करता, पर इसलिए वो हमला नहीं करता कि मित्र है और चला गया। तो एक हैंडशेक सी हो जाती है दोनों के बीच में। तो अब नया दौर चला है इम्यूनोथेरेपीज़ का। तो इम्यूनोथेरेपी में ये इस हैंडशेक को रोकने वाले मॉलिक्यूल्स डेवलप करे जा रहे हैं, जो कि पहले ही ट्यूमर पे बाइंड कर जाते हैं, ताकि वो हैंडशेक ना हो सके। तो उसमें जब वो मॉलिक्यूल्स ट्यूमर से चिपक जाते हैं, तो जो इम्यून सेल हैं आपके, वो ट्यूमर को वो दुश्मन उसको मानने लगते हैं और उसको एलिमिनेशन। अटैक करने लगते हैं। तो ऐसा एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि मेलानोमा नाम की बीमारी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर्स में बहुत प्रचलित है। तो जो मेलानोमा में जो स्किन कैंसर में जो ये बीमारी इतनी प्रचलित है, तो उसका जो सर्वाइवल होता था वो 6 महीने से कम होता था, आप कुछ भी कर लें। तो एक मेरा मरीज़ था, तो वो इतनी बुरी हालत में था कि वो फ्यूनरल के लिए पे करके आ गया था अपनी, कि 15 दिन बाद मेरा फ्यूनरल होगा, 10 दिन में, तो मैं डॉक्टर की विज़िट के लिए जा रहा हूँ। ये मेरे फ्यूनरल के पैसे मैं फ्यूनरल होम में डिपॉज़िट कर कर आ गया हूँ कि मेरा फ्यूनरल कर दें आप। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसको जैसे-तैसे हाथ जोड़ के मनाया कि आप इम्यूनोथेरेपी लो। उसको इम्यूनोथेरेपी दी हमने और वो 3 हफ़्ते बाद उसकी नेक्स्ट डोज़ लगनी थी और वो चलते हुए आया। तो इम्यूनोथेरेपी जब आप रिज़ल्ट्स ऐसे देखते हो कि टारगेट थेरेपी दी और पेशेंट चल के आ गया, और आपने इम्यूनोथेरेपी दी और पेशेंट जो आप सोच रहे थे कि वो खुद ही सोच रहा था कि मैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं बचूँगा, वो खुद चल के आ रहा है। 3 साल तक वो अभी भी ज़िंदा होगा शायद। 3 साल तक तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब तक तो वो ज़िंदा था ही। तो ये जब आप देखते हो, तो ये सिचुएशन जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी का वास्तव में फ़ायदा है। बिल्कुल। और ऐसे ही एक्सपीरियंस मुझे एम्स में तो मुझे टारगेट थेरेपीज़ का एक्सपीरियंस हुआ, पर इधर मुझे
ऑस्ट्रेलिया में न्यूअर इम्यूनोथेरेपीज़ का एक्सपोजर मिला। और फिर उसके बाद मैं कनाडा गया, वहाँ हमने एडल्ट बीएमटी करे और कार्टी सेल थेरेपीज़ करी, और अमेरिका में भी हमने काफ़ी कार्टी सेल थेरेपीज़ करी। तो इसके अंदर भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। तो बच्चे या बड़े जिनमें कि मैं चिल्ड्रंस वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल में था, मैंने एडल्ट्स में काम करा, और मैंने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लॉस एंजलिस में बच्चों में भी काम करा, और कार्टी सेल थेरेपीज़ पे भी काफ़ी काम करा। तो कार्टी सेल्स पे भी हमारे पास अच्छे वाक़ये हैं। तो जैसे कई बच्चे या बड़े जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फ़ेल कर गए हैं, तो उनमें जब बीमारी वापस आ गई है तो इफ़ेक्टिवली वो एक डेथ सेंटेंस है। डेथ सेंटेंस है मतलब आपके कुछ चंद दिन बचे हुए हैं आपके। तो उनमें कार्टी सेल्स के ट्रायल्स चल रहे थे उस टाइम 2017-18 में मैंने पार्टिसिपेट करा था उन ट्रायल्स में। तो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स थे। तो अगर आपने एक प्रोडक्ट दिया, सो मैं आपको कार्टी सेल्स के बारे में बाद में बताऊँगा। आपने एक प्रोडक्ट दिया, उससे वो काम नहीं करा तो दूसरा, नहीं तो तीसरा। तो उसमें 99% में रिस्पॉन्स आ रहा था, और ये था आशा थी कि 50% से ऊपर हमें क्योर रेट भी मिल गया है ऐसी बीमारी में। तो कार्टी सेल्स में बेसिकली होता क्या है कि आपके खून से जो टी सेल्स जो आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं, इम्यून सोल्जर्स हैं, उनको निकाला जाता है, और उनके ऊपर ऐसे रिसेप्टर डाले जाते हैं ताकि वो ट्यूमर को एकदम पहचान लें आपके खून में जाते ही। और जब वो ट्यूमर को देखते हैं और पहचानते हैं आपके खून में जाकर, और तो ट्यूमर से चिपक भी जाते हैं, और साथ-साथ जो सिग्नल्स उनमें आते हैं तो एक्सपैंड भी कर जाते हैं। तो जितना ट्यूमर बल्क होता है उतना वो ग्रो भी कर जाते हैं लिमिटेड में। ऐसा नहीं कि दवाई की डोज़ आपको बार-बार देनी पड़ती है। ट्यूमर के हिसाब से वो बढ़ने लग जाते हैं। उनको स्टिमुलस उतना मिलता है ट्यूमर देख के, और फिर वो ट्यूमर को मारने में सक्षम होते हैं। तो कार्टी सेल्स 50-60% केसेज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कैंसर की में हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए, या हम पहुँचने वाले हैं, या क्या होने वाला है। पर मैं ये बोलूँगा कि जो स्थिति अभी है वो 30 साल पहले या 20 साल पहले से बहुत बेहतर है, और 10 साल पहले से भी बहुत बेहतर है, तो और हर इम्प्रूवमेंट रोज़ कंसिस्टेंटली चल रहा है। और ये कॉन्स्टेंटली एक इम्प्रूवमेंट चल रही है। और जैसे कि आप देखेंगे कि यूएस का जो स्पेस प्रोग्राम था, उन्होंने लॉन्च करा, तो बिल्कुल प्रिमिटिव से रॉकेट्स थे। फिर अब उस पे शटल बन गई है, पर वापस आके लैंड भी हो और जाते हैं। लैंड भी हो जाती है, और पर उस लीडरशिप को एक्वायर करने में उनके कई एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान की बाजी दी, कई रॉकेट्स क्रैश करे, कई प्रोग्राम्स क्रैश करे, कई मनी वेस्ट हुआ। तो बट इट वाज़ अ रफ रोड, बट इट लेड टू द स्टार्स। तो यस। कैंसर की जर्नी भी वैसी है, इट्स अ रफ रोड, बट इट विल लीड टू द स्टार्स, एंड इट्स ऑलरेडी लीडिंग टू द स्टार्स फॉर द पेशेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिव टू these ट्रीटमेंट्स। तो थैंक यू फॉर द इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। पूरा जर्नी कैंसर का कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे ट्रीटमेंट्स इवॉल्व कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं पढ़ रहा था कि ल्यूकीमिया कई बार मिसडायग्नोज भी होता है। थोड़ा सा उसके बारे में मुझे समझना था कि वो इन्फ्लुएंजा कैटेगरी में या फीवर या ब्लीडिंग कैटेगरी में कई लोग मिसडायग्नोज कर देते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? तो ल्यूकीमिया एक रेयर डायग्नोसिस है। तो ल्यूकीमिया में आपका जो सफ़ेद खून है वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपको इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो जो डॉक्टर होता है, और इन्फेक्शंस में भी सफ़ेद खून के काउंट बढ़ सकते हैं। तो जो बिल्कुल। ऑर्डिनरी, अगर आप हर एक में ल्यूकीमिया सस्पेक्ट नहीं कर सकते, और ऑर्डिनरीली आप लोकल ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं, जैसे अगर आपका गला ख़राब हो रहा है बार-बार तो आप गरारे करते हैं। आप थोड़े एंटीबायोटिक ले लेते हैं कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर आप ब्लड टेस्ट करते हैं, और फिर जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो फिर आपको बढ़ा हुआ खून मिलता है, तो आप सोचते हैं कि एंटीबायोटिक से कंट्रोल हो जाएगा, और वो नहीं होता, तो फिर आप स्लाइड्स में देखते हैं और अच्छी तरीके से कि क्या सफ़ेद खून में क्या है। तो कई दफ़ा सफ़ेद खून में भी नहीं दिखता, आपको बोन मैरो टेस्ट करना पड़ता है ल्यूकीमिया डायग्नोज़ करने के लिए, और थोड़ा लेटर स्टेजेज़ में आपको वो सफ़ेद खून दिखता है। तो ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपने रेज़ करा, तो जब मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में था तो मेरे टेनिस कोच के साथ ऐसा हुआ। तो टेनिस कोच थे, तो उनके गले में खराश हुई, तो एंटीबायोटिक्स हुई, तो 2-3 दिन छुट्टी पे आए, रह गए। तो फिर सोचा कि हमने सोचा कौन-सा कोई ल्यूकीमिया हुआ है इसे कि जो ये मतलब इतने आ ही नहीं रहे हैं, हल्के जुकाम से। टेनिस वाले तो बड़े फिट होते हैं। तो जब उनके ब्लड काउंट्स कराए तो देखा अरे! तो बहुत रेज़ड हैं, तो हम तो कैंसर डिपार्टमेंट में थे, तो गॉट हिज़ टेस्ट डन इमीडिएटली, सो वी हैड हिम ट्रीटेड फॉर ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस का कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि वो इन्फेक्शंस की तरह प्रेज़ेंट करते हैं, और आप आम तौर पे नॉर्मल इन्फेक्शंस को ल्यूकीमिया नहीं समझते हैं, तो वो उसके मास्क में छुपे रह जाते हैं। मास्क में छुपा रह जाता तो जैसे बहुत सारे डायग्नोसिस के तरीके अवेलेबल हैं, बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट कैंसर का डर अभी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक फोबिया टाइप है, और जैसे ना वो छुप के जीने वाली टेंडेंसी अभी भी है कि छुपेंगे तो शायद बच जाएंगे।
ये माइंडसेट क्या अभी भी कैंसर के ट्रीटमेंट को डिले कर रहा है और सारे प्रोसेस को खराब कर रहा है? क्या आप ऐसा देख रहे हैं? तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मेरे पास कई वाक़ये हैं। तो कई पेशेंट्स थे जो कि कैंसर ट्रीटमेंट से इतना डर रहे थे कि कैंसर की बीमारी की जो पीड़ा है, वो झेलने को तैयार रहते हैं। जैसे कई लेडीज़ थीं, बहुत ही एजुकेटेड घर के लोग थे, पीएचडी स्कॉलर्स और काफ़ी मतलब वसंत विहार और इन कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग थे या साकेत में बड़े हाई मतलब हाई सोसाइटी जिसको आप बोल सकते हैं कि सब कुछ है। पर वो कैंसर से इतना डरे हुए थे कि उनका ब्रेस्ट कैंसर पहले छोटा हुआ 1 सेंटीमीटर का, फिर 2 सेंटीमीटर का, फिर 10 सेंटीमीटर का, फिर लिवर में भी फैल गया। फिर भी ट्रीटमेंट को तैयार नहीं, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट से इतना वो डरे हुए थे कि वो कैंसर की पीड़ा सह रहे थे। और जो सो कॉल्ड अनएजुकेटेड लोग हैं, जो आप कहते हैं कि नीचे तबके के लोग हैं, वो बड़े ही एग्रेसिवली, क्योंकि उनके पास पूरी फैमिली सपोर्ट भी होती है और बड़ी फैमिलीज़ भी होती हैं, वो एग्रेसिवली ऑलनी इंस्टीट्यूट में लाइनों का वो जमावड़ा पार करते हुए सीधा ट्रीटमेंट के लिए एग्रेसिवली आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको इस डिज़ीज़ से निकलना है। जिम्मेवारी भी बहुत है रखने में। ज़िम्मेदारी तो सब पे होती है, पर जो डर होता है, वो कहीं न कहीं एजुकेशन हमें हेल्प नहीं करती है, बल्कि उस डर को और बढ़ावा देती है। उस डर को बढ़ावा दे देती है हमें। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हाँ, हाँ, हाँ। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और जो डर होता है जिसको पता नहीं कि ट्रीटमेंट क्या है, वो वो थोड़ा बेटर बेसिकली रहता इतना है। जानता ही नहीं है, इतना एनालिसिस पैरालिसिस हुआ ही नहीं है, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। जाके सोच रहा है नॉर्मल बीमारी की तरह इसको भी ठीक करो। इसको भी ठीक करो और वही माइंडसेट बेस्ट है। माइंडसेट इसलिए बेस्ट है, सिंपल माइंडसेट और आई सिंपल थिंक वो माइंडसेट कि ट्रीटमेंट बस तक। हाँ। ठीक करो किसी तरह। मैं सब हर चीज़ के लिए तैयार हूँ और आप बेस्ट करो मेरे लिए। वो माइंडसेट बहुत हेल्पफुल है। अब अगर आप सोचने लगें कि इसमें तो ये हो जाएगा, अरे इसका तो ये मोटिव है, अरे ये तो ये सोच रहा होगा और मैं ऐसा कराऊँगा तो ये हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपके ट्रीटमेंट को हैम्पर करती हैं। जो भी आपके माइंड में डाउट डालती है और आपको रोकती है प्रॉपर चीज़ से, क्योंकि प्रॉपर चीज़ प्रॉपर टाइम पे होनी बहुत ज़रूरी है। पहले ट्यूमर 1 सेंटीमीटर का होता है। अगर आप 1 सेंटीमीटर का ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप उसको हटा दें तो कई दफ़ा आप रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की भी शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। जब वो बढ़ जाएगा तो आपको सब कुछ कराना पड़ेगा और जब वो बहुत ही सब जगह फैल गया, तो आपको सब कुछ करा के भी कुछ नहीं मिलेगा। एक नया फ़ील्ड है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का, कि जिसके अंदर आप सोचते हैं और वो बीमारी प्रकट हो जाती है। करेक्ट। आप सोचते हैं और वो दर्द शुरू हो गया आपको। आप सोचते हैं मुझे साँस नहीं आ रही और मुझे सच में लगने लगता है कि मुझे साँस नहीं आ रही। और अपने सामने जो रिश्तेदार हैं उनको भी आप कन्विंस कर रहे थे कि मुझे साँस नहीं आ रही। तो ये जो दर्द, साँस, ये सब प्रॉब्लम्स कैंसर के भी लक्षण होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी और हाँ, सब हाँ, बढ़ा तो रहा ये है। कैंसर के भी लक्षण होते हैं, तो और ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के भी लक्षण हो सकते हैं। तो एक चीज़ आपने जैसे स्ट्रेस से लेके जो सिम्पटम्स मैन्युफैक्चर कर लिए, वो बड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं समझना कि वो कैंसर के सिम्पटम्स हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट्स के सिम्पटम्स हैं। तो आपको कैंसर का इलाज आपके हाथ इलाज करते हुए वैसे ही उन मरीजों के बंध जाते हैं। तो मरीज अगर सर्जरी का स्ट्रेस ले रहे हैं तो अपनी सर्जरी डिले करेंगे, सर्जरी नहीं लेंगे, या फिर अगर पोस्ट ऑप पीरियड में स्ट्रेस लेंगे हर चीज़ का, तो फिर छोटी प्रॉब्लम्स को भी वो बड़ा बना देंगे और फिर वो आगे के ट्रीटमेंट्स नहीं लेंगे। तो अगर उनको एक थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए कि ये सोचने के लिए कि दिस इज़ शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। अगर वो शॉर्ट टर्म पेन को इतना बड़ा बना दें कि वो छोटी-छोटी चीज़ों से भी डर जाते हैं। जैसे मेरे कई मरीज़ हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उन्होंने सर्जरी करा ली, फिर कीमोथेरेपी करा ली और रेडिएशन भी करा ली। पर उनमें इन तीनों मोडालिटीज़ में किसी भी मोडालिटी में अगर उनको एक सेटबैक लगा, तो कहते हैं मैं हार्मोन की गोली नहीं लूँगा। तो उन्होंने 90% इलाज तो करा लिया, पर हार्मोन की गोली ली नहीं। अब हार्मोन की गोली आपने ली नहीं, तो जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी का जो इफ़ेक्ट है वो 1 साल तक रहता है। 1 साल के बाद आपको हार्मोन की टैबलेट ही हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म क्योर के लिए। अब आपने ली नहीं तो 1 साल के बाद आपकी बीमारी वापस आ गई। अब वापस आ गई सब जगह, फैल गई। तो फिर जो आपकी जो कहीं न कहीं उसका रूट कॉज़ है कि आपकी एंग्ज़ायटी लेवल इतने हाई थे, आपके जो स्ट्रेस आपने इतना ले लिया ट्रीटमेंट्स का, जबकि वो खत्म भी हो गई, तब आपका स्ट्रेस और मैग्नीफाई हो गया। हैबिट बन गई आपकी। हैबिट बन गया। बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए कि जो ट्रीटमेंट सबसे लेस स्ट्रेसफुल है, इट इज़ एज़ स्ट्रेसफुल एज़ टेकिंग अ ब्लड प्रेशर और अ कोलेस्ट्रॉल टैबलेट एवरी डे। आजकल सारी आधी दुनिया हमारी इंडिया की सब डायबिटीज़ लेने मेडिसिन से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पे या थायराइड पे। तो इट इज़ आउट एज़ स्ट्रेसफुल और हैज़ एज़ मैनी साइड इफेक्ट्स एज़ दोज़ ड्रग्स। पर आपने जो सबसे इनोकुअस और सबसे यूज़फुल ट्रीटमेंट है, उसमें आपने इतना शोशा कर दिया, इतना हल्ला कर दिया कि नहीं मैं नहीं ले पाऊँगा। आपने पहले ही सोचा और सच में लेना बंद कर दिया। और किस तरह किसी ने एक दिन आपको गोली दे भी दी,
तो अपने अगले दिन सोच के कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है और इसी से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, अरे मेरे तो शरीर ही खराब हो गया, ये सोच हाँ के आपने ट्रीटमेंट लेने से ही मना कर हो दिया। सकता है मल्टीपल और चीजें ट्रिगर कर दो अपनी बॉडी में, हाँ, आप अपने आप सोच के इतना सोच के ट्रिगर करते हो कि अरे मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अरे मेरी सांस हाँ फूल रही है, और ऐसा अगर मैं 5 दिन और ये गोली ले ली तो मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। ये सोच के आपने इतना अपने आप को साइक अप कर लिया है कि आपने दवाई, जो सबसे इनोकुअस दवाई है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि कीमोथेरेपी और बिल्कुल रेडियोथेरेपी से कहीं बिल्कुल। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसके सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपने नहीं ली। तो उसके लिए आपका असर आ गया। और नॉन कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट्स और डिलेड ट्रीटमेंट्स, ये सबसे बड़ी बाधक है, ना कि वेयर यू हैव टेकन द ट्रीटमेंट। तो आई थिंक वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं खो जाती है हुँ, स्ट्रेस और एंजाइटी में। हुँ, सर अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आजकल बहुत रिसर्च बहुत बातें चल रही हैं, वो है स्लीप। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है आज की लाइफ में, बहुत सारी इश्यूज ट्रिगर करते हैं हमारी लाइफ में। क्या स्लीप का कैंसर में भी कुछ रोल है? स्लीप का स्ट्रेस से रोल है। अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं करेगा और ज़्यादा स्ट्रेस इम्यून सिस्टम पे भी काम और होगा इम्यून उससे। सिस्टम पे भी असर पड़ेगा। तो एग्ज़ैक्ट वर्कआउट नहीं हुआ है कि अकेली स्लीप की डेफिशिएंसी से कैंसर हो रहा है, पर ये सारे मल्टीफैक्टोरियली लिंक्ड है सारा मल्टीफैक्टोरियल। ये। ओके। सर जैसे एक चीज़ मुझे समझाइए, कैंसर में बोलते हैं रेडिएशंस का बहुत इफेक्ट पड़ता है, इवन आपके डिवाइसेस का फर्क पड़ता है, हुँ, कहाँ आप रह रहे हैं प्लेनेट पे, नॉर्थ में रह रहे हैं, नॉर्थ पोल के आसपास, जैसे इवन बोलते हैं पायलट्स को बहुत रिस्क होता है, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को रिस्क होता है, क्या ये सच है? तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था 3 साल, तो वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है और वहाँ सन डायरेक्ट आता है, तो और वो गोरी चमड़ी के लोग हैं, तो उनको स्किन कैंसर्स का इंसिडेंस बहुत हाई है। हाँ बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, तो जितनी भी स्किन कैंसर की रिसर्च है वो और ऑस्ट्रेलिया स्किन में बहुत कैंसर्स, ज़्यादा वो है। ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन कश्मीर में कांगड़ी कैंसर की, वो कांगड़ी पकड़ते हैं तो उनका पेट की स्किन का कैंसर हो जाता है, तो ये अच्छा, कांगड़ी कैंसर है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एनवायरमेंटल और भी स्ट्रेसेस हैं। हेपेटाइटिस, लोकेशन बेस्ड है। लोकेशन हेपेटाइटिस बी है, वो लिवर फंक्शन आपको खराब करेगी। अल्कोहल है, वो भी आजकल जो लिवर कैंसर का कॉमन कॉज हो गया है, वो ओबेसिटी और अल्कोहल, ये सब जो लिवर डैमेज होता है उसकी वजह से कैंसर्स हो रहे हैं पहले, और बल्कि जो वायरल इन्फेक्शंस थी उनसे अब कम हो रहे हैं कैंसर्स। तो ये सारा एनवायरनमेंट का और इसका बहुत रैपिड इंटरप्ले चल रहा है। तो बेसिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कैंसर्स प्रिवेल हुँ। करते हैं। तो जहाँ ओबेसिटी ज़्यादा है, जैसे अमेरिका में है, और रेड मीट खाते हैं तो उनको कोलन कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे ही एनवायरनमेंट का बहुत और इंडिया भी आजकल वेस्टर्नाइज़ हो रहा है, तो हमने वेस्टर्नर्स की अच्छी हैबिट्स नहीं पकड़ी हैं, हमने उनकी बैड सारी हैबिट्स। खराब हैबिट्स अच्छी तरह पकड़ ली हैं। तो वो जो उनके जो स्ट्रेस लीवर्स थे, जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग, वो वो हमारे उनके बस। स्ट्रेस लीवर्स थे, वो हमारे स्टेटस सिंबल्स बन गए। हाँ, वो हमारे मतलब वो बन गए स्टेटस सिंबल, सही कह रहे हो आप। और हम में से कोई भी अपना बाथरूम क्लीन नहीं करेगा, कोई भी अपना घर क्लीन नहीं करेगा, किसी को कारपेंटरी नहीं आती होगी, किसी को टाइलिंग नहीं आती होगी, और किसी को अपने हवा में गाड़ी में हवा भरनी नहीं आती होगी, किसी को जो पेट्रोल उनकी भरना नहीं अच्छी आता होगा, चीजें हैं वो। और कोई एक्सरसाइज नहीं करता होगा, बिल्कुल। हैं, और सब अनशंट खाते होंगे, हैं। तो जो उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं कि वो अपना सारे घर का काम खुद मैनेज करते हैं, खुद अपना आप वो नहीं मैनेज सीख करते हैं, खुद पाते। अपने प्रेस कर रहे हैं, कपड़े खुद धो रहे हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा। अल्कोहल और ये सब सबको दिख रहा है। अल्कोहल और स्मोकिंग जो कि वो खुद टोन डाउन करते हैं। तो मैं वैंकूवर में था, तो वहाँ के डायटीशियन ने बोला कि देसी घी और कोकोनट ऑयल, दे आर द बेस्ट कुकिंग मीडिया, और जो उसने डाइट डिस्क्राइब की रिच इन टर्मरिक एंड स्पाइसेस, वो क्लासिकल इंडियन डाइट है। तो वो सब योगा और उस पे आ रहे हैं, वो वापस और घूम रहे हैं। वो वापस घूम चुके हैं। घूम चुके घूम हैं। चुके हैं, अच्छी तरह घूम चुके हैं, और हम हम उनकी उन्हें सारी देख देख के। उनकी हाँ, बुरी हैबिट्स हमने पकड़ ली हैं, अपने स्टेटस सिंबल बना दिया उन्होंने हमको। बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं ये डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब जो क्लीन डाइट है, वेजिटेरियन डाइट है, उसमें लेस टॉक्सिन्स है, कुछ ऐसा है? हाँ, बिल्कुल यही है। तो मैंने आपको बताया कि जो मैं खुद हैरान था कि कनाडा की वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल की जो हेड डायटीशियन है, वो एक पूरा लेक्चर दे रही है उसमें। पूरे हॉस्पिटल के सामने उसने लेक्चर दिया इस पे कि व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर कैंसर, व्हाट इज़ द बेस्ट दिस थिंग फॉर कैंसर। तो ऑटोमैटिकली आप एक एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेते हैं जो कि पॉल्यूशन फ्री है, पोल्यूटेंट फ्री है, रेड मीट नहीं है, फ्राइड नहीं है, तो वो ऑटोमैटिकली आप एक हेल्दी डाइट जब लेते हैं, तो फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हाँ जी। तो जो ये हार्मोन्स आ रहे हैं खाने में, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं आजकल, आई थिंक इससे भी इफेक्ट पड़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में। हाँ, तो जो सोया का कुछ लिंक किसी ने डाला है और हार्मोन्स का भी डाला है। अनफॉर्चुनेटली ये लिंक्स जैसे मोबाइल का आप पूछेंगे या ये पूछेंगे, तो ये हमें क्लियर एविडेंस इसलिए भी नहीं अभी नहीं मिलती है, क्योंकि ये बहुत कमर्शियल लिंकेजेज़ और हैं। प्लस अभी इतनी रिसर्च भी नहीं है। रिसर्च भी तभी होगी अगर वो कमर्शियली काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा। हम्म। तो आप सोचें कि 50 साल से सारी गवर्नमेंट्स दुनिया की स्मोकिंग बैन नहीं कर पाई हैं, टोबैको बैन नहीं कर पाई हैं, हालाँकि 20% कैंसर स्मोकिंग और स्मोकिंग अल्कोहल से। रिलेटेड है। आप इमीडिएटली एक डिक्टेट पास करिए, आप स्मोकिंग और अल्कोहल को हटा दीजिए, आपकी रेवेन्यू आधी हो जाएगी गवर्नमेंट की। करेक्ट। और पर
ठीक है, कुछ लोग सफ़र करेंगे 2-4 साल, फिर 5 साल बाद लोग भूल ही जाएँगे कि कोई अल्कोहल या स्मोकिंग नाम की कोई चीज़ भी थी। करेक्ट, पर आप भूलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्योंकि रेवेन्यू आपका आ रहा है। पूरा सारी गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू से चलना है, बहुत पावरफुल लॉबीज़ बन गई हैं, एक वे ऑफ बिल्कुल, लाइफ बन गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्कोहल, टोबैको, उसके अराउंड आपकी रेस्टोरेंट्स हैं, उसके आई साथ थिंक काफ़ी एग्रीकल्चर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला एक सेक्शन तो। बहुत एक इंट्रिकेट वेब बन गई है, जो बहुत कमर्शियल वेब बन गई है। तो अब अगर आप कोई मोबाइल्स को बोल दे कि इससे कैंसर हो रहा है, तो कोई उसको विथड्रॉ नहीं कर पाएगा। आप भी नहीं करोगे, बिल्कुल, चाहे होता भी हो। तो बिल्कुल। एक ऐसी एक इंटीग्रेटेड कमर्शियल वेब बन गई है हर चीज़ में, एक लाइफ़स्टाइल है। हाँ, अगर आपने पूरी वो वाइन खत्म कर दी, अल्कोहल खत्म कर दी, तो जो सारी एग्रीकल्चर बहुत इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ बैठ जाएँगी। बॉटलिंग इंडस्ट्री है, फिर जो आपकी जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बैठ रेस्टोरेंट जाएगी। इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आपकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैठ जाएँगी। ऐसी स्मोकिंग के लिए टोबैको फार्मर्स, प्लांटेशंस, सारी जो स्मोकिंग जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो बीड़ी बनाते हैं, वो छोटे से बड़े तक सारे इन्फ्लुएंस हो जाएँगे। गुटखा जो फार्मर्स हैं, ये हैं, छोटे लोग हैं, सारे इफ़ेक्ट हो जाएँगे, उससे उनकी एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको एक बहुत इंट्रिकेट वेब चलती है दुनिया में, जिसकी कि हमें अवेयरनेस नहीं मिलती। हम बिल्कुल। बोलते रहते हैं कि कैंसर कंट्रोल करना है, पर कैंसर कंट्रोल सच में बहुत ईज़ी है अगर आप पॉलिसी डिसीजन लें। अगर फैक्ट के बेसिस पे फैक्ट जाएँ। के बेसिस पे आप जाएँ और एक इम्पार्शियल डिसीजन लें, तो आप कैंसर कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। बट आई थिंक सर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने बताया ना, जिससे टेक्नोलॉजी आज ऐसी हो गई है कि हम कैंसर को ट्रीट भी कर पा रहे हैं, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं पे बैकफायर भी कर रहा है, जहाँ पे ये लॉबीज बन गई हैं, सारा हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इतना सेटअप हो चुका है कि वो कैंसर कॉजिंग है, लेकिन वो कह रहा है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके उसको ठीक कर लो, हम ये नहीं बंद कर पाएंगे। तो जैसे कि अमेरिका की गन लॉबी है, तो वहाँ पर रोज़ आपको शूटिंग्स मिलती हैं, हाँ, पर वहाँ का प्रेसिडेंट भी गन लॉबी की अगेंस्ट नहीं जा सकता, और नहीं वो जा सकता। स्कूल स्टूडेंट्स भी हैंडगन लेके सबके सबको पास शूट कर गन रहे हैं है। मज़े में, जिसका हाँ, दिमाग खराब हुआ उसने बंदूक हाँ, पकड़ी और सबको उड़ा दिया। तो वो कभी कंट्रोल नहीं कॉम्प्लिकेटेड कर है पा सर रहे ये। हैं। तो हाँ, ये करेक्ट। अगर आप ग्रीड हटा दें, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेडिसिन में अगर आप ग्रीड हटा दें, तो आप एक्सीलेंस अचीव कर लेंगे, हाँ, क्योंकि आप प्योर साइंस पे जाएँगे। हाँ, तो क्लिनिशियन बन पर जाएंगे आप प्रॉपर। वर्ल्ड से एक्सपेक्ट करना कि वो प्योर साइंस पे जाए, तो बहुत मुश्किल काम है, गलत हो क्योंकि जो जाएगा। पॉलिटिक्स का जो नेचर है, तो वो इन सब चीज़ों से वो बने हैं। पॉलिटिक्स, अगर ईगो, पावर पे और इन सब पे चलता है। पावर इसी पे ही चल रही है, पावर पैसे से चल बिल्कुल, रही है और बिल्कुल। इन सब चीज़ों से चल रही है, और वो बंद कर देंगे तो एकदम ही अनपॉपुलर हो जाएँगे। तो एकदम ही उनकी सरकारें गिरने लग जाएँगी या कुछ हो जाएगा। तो तो आई ये थिंक सर अपना ध्यान रखना अपने हाथ में है। अपना ध्यान आपको हाथ में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ने तो ऐसे दुनिया ही नहीं चलना रखने है, वाली दुनिया है। ने ऐसे ही चलना है और हाँ, खराब करना है। तो अपने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ, अपनी अपनी लाइफस्टाइल को हुँ, सुधारो, और वो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हेल्प कर हाँ, सकता है कि आप बच सकते हो हुँ। कैंसर से। सर आप आज की डेट में जो पेशेंट्स देख रहे हो, सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? इंडिया इतनी वास्ट पॉपुलेशन है कि सारे कैंसर्स, अनकॉमन कैंसर्स भी बहुत कॉमन है। पर सबसे कॉमन कैंसर्स जो फीमेल्स जो हम देख रहे हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर है, ओके, और मेल्स में हेड एंड नेक कैंसर्स हैं। हेड एंड नेक। तो ये सर जैसे ब्रेस्ट कैंसर के क्या रीजंस हैं आज की डेट में, जो इतना ये रिसेंटली क्यों स्पाइक होना शुरू हुआ है? तो रिसेंटली सारे एनवायरमेंटल ओबेसिटी एक बहुत कॉमन कारण आया है, और एक ये है कि हमारे लाइफ स्पैन्स भी इंक्रीज करें हैं, क्योंकि पहले इन्फेक्शियस डिजीज से भी लोग मर मर जाते थे, कॉलरा का एपिडेमिक हुआ, लोग मर गए। अब अच्छे अच्छे वैक्सीन आ गए, थोड़ा वाटर थोड़ा बेटर हो गया, जिससे आज़ाद हुआ इंडिया। हाँ जी। तो जो लाइफ स्पैन इंडिपेंडेंस पे था, वो लेस देन 30 था। तो ब्रिटिश ने हेल्थ केयर का सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो करके रखा था, तो आगे गवर्नमेंट्स ने हेल्थ केयर बढ़ाया, वैक्सीनेशंस बढ़ाए, तो लाइफ स्पैन भी बढ़ने लगे, तो लोग ज़्यादा जीने लगे। पर साइड बाय साइड पॉल्यूशन भी बढ़ने लग गया और लाइफ स्टाइल्स भी चेंज हो गए। तो उस वजह से लाइफ स्पैन जो बढ़ा, तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ा, पर वो इंसिडेंस की कैंसर जब एकदम कैंसर नहीं आता। हालाँकि कुछ चीज़ों से एकदम कैंसर भी आ सकता है, पर रेडिएशन से भी, किसी भी चीज़ से एकदम कैंसर नहीं आता है। तो कैंसर क्यूमुलेटिव आता है। एक सेल डैमेज हुआ, वो कैंसर नहीं बन पाया, फिर कुछ टाइम बाद वो डेवलप होने लगा, फिर पहले छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ। तो जितना आपका लाइफ स्पैन बढ़ता रहता है, उतना चांस कैंसर्स का भी बढ़ता रहता बढ़ता है। रहता और साइड बाय साइड आपके जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, और ये जो आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, वो भी आ जाते हैं। तो पहले इतनी प्रॉस्पेरिटी कभी इंडिया में नहीं थी, है। हाँ, जितनी कि एक दबके में अभी एक जो प्रॉस्पेरिटी आई है। तो और उस प्रॉस्पेरिटी का मिसयूज़ भी हो रहा है, जैसे अपना काम घर का खुद नहीं करना, कुछ नहीं करना। प्लस सर मैं पढ़ रहा था कि लेट मैरिजेस और ब्रेस्ट फीडिंग से भी इशू होता है ब्रेस्ट कैंसर में। वो इज सारे दैट इश्यूज़ ट्रू? तो रही हैं, क्योंकि लेट मैरिजेज़ से अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करेंगे और लेट मैरिजेज़ होंगी, और मेनोपॉज़ का आपका अर्ली मेनोपॉज़ हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों से भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं। ओके। सर मेरा क्वेश्चन लास्ट ल्यूकीमिया के अराउंड रहेगा। क्या ल्यूकीमिया बच्चों में आज की डेट में कॉमन होता जा रहा है? क्या ऐसा है? बच्चों का ल्यूकीमिया एक बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, और उसका एनवायरमेंटल कॉज़ अभी तक नहीं मिल पाया है। हालाँकि बहुत सारे ट्रिगर्स एक्सप्लोर करे गए हैं, तो शायद बचपन में ही जो सेल्स थोड़े बिगड़ जाते हैं, उनसे ही
मतलब ये जेनेटिक हो सकता है? जेनेटिक भी हो सकता है, पर उसका इन्फ्लुएंस अभी आज तक पता पता नहीं नहीं लग चल रहा। पाया है। बट बिटवीन 2 एंड 10 इयर्स जो चाइल्डहुड ल्यूकीमियाज ALL जो होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक एक्यूट ल्यूकीमिया बोलते हैं, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, वो हाईली क्योरेबल है और अच्छा। उसमें अराउंड 90% के करीब क्योर रेट्स भी हैं आजकल, और उसी में CAR T सेल और ब्लड मोनो ट्रांसप्लांटेशन ये सब आ गए हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब वो फिक्स हो सकता है बेसिकली हाँ बच्चों हाँ में। हाँ, काफ़ी ट्रीटेबल है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेबल ऑफ ऑल कैंसर्स। सो पर ये इसकी भी एक प्रॉब्लम है कि ये एक यंग कपल्स को अफेक्ट करता है, जो कि अभी अपनी लाइफ स्टार्ट कर हाँ, रहे हैं हाँ, हाँ। और अभी जॉब्स में लगे हैं, अभी मैरिज हुई है और फिर अचानक ल्यूकीमिया हो गया, तो उनकी लाइफ अपसाइड डाउन पलट जाती है। और जो करेक्ट। कैंसर ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट 6 मंथ्स बड़े क्रिटिकल होते हैं, उसमें इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं, आपका सफ़ेद खून भी कम हो सकता है, ब्लड की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, प्लेटलेट्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, फिर सारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो आप कहाँ से ब्लड लाओगे, कहाँ से प्लेटलेट लाओगे, कहाँ से डोनेशन ऑर्गेनाइज़ करोगे, फिर फंड्स भी ऑर्गेनाइज़ करोगे, तो एक नाइटमेयर की तरह आ जाता है। हालाँकि उसके 90% प्लस क्योर रेट्स हैं, पर अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम में फँसेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स उसके सबसे इम्पोर्टेंट है। और तो हाँ जी। एक नाइटमेयर की तरह आता है फैमिली की तरह। हालाँकि जब लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी पेशेंट्स उससे क्योर भी हो गए क्योर हैं। हो जाता है। तो बेसिकली आपको ट्रीटमेंट में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना चाहिए। डायग्नोसिस पहले मतलब डायग्नोसिस के लिए प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक तभी आप कैंसर से बच पाएँगे। आपके हाँ, चांसेस ऑफ एस्केपिंग और सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम इट बढ़ जाएँगे। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि जैसे किसी को गाँठ हुई, थोड़ी गाँठ हुई, हाँ, तो वो उस गाँठ से यूज़्ड टू हो जाता है। हाँ, तो 1-2 महीने बाद अगर थोड़ी-सी बड़ी हुई भी हो और उसको परेशान नहीं कर रही, हाँ, वो कहता है चलने दो, हाँ। चलने दो। जैसे एक सिस्ट और गैंग्लियन हो जाते हाँ, हैं हाँ, कई बार वैसे ही तो चलने उसमें दो, हाँ, थोड़ी और हाँ। बड़ी गाँठ हो गई, थोड़ी और बड़ी हो गई। वो लेकिन मिरर में देख-देख के उससे यूज़्ड टू हो गया। उसने एक बार मन बना लिया कि छोड़ अभी तो तंग नहीं कर हाँ, रही। हाँ, 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 जब तंग करती है तब पता चलता है और जगह भी फैल हाँ, गई है, हाँ, सब जगह फैल गई है। बिल्कुल। तो आई थिंक सर ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ के चलनी चाहिए और कैंसर के बारे में ये अवेयरनेस ज़रूरी होनी चाहिए कि एटलीस्ट लोग उससे अपने आप को बचा पाएँ। अपना लाइफ़स्टाइल, अपनी हेल्थ तो अपने हाथ में है ही, जैसा हमने डिस्कस करा, बट ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आई थिंक टाइम से पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गवर्नमेंट्स का भी फ़ोकस रहना चाहिए कि हाँ, वो एक ईज़िली एक्सेसिबल हेल्थ केयर बनाएँ बिल्कुल। और एम्प्लॉयर्स को और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स आजकल प्राइवेट एम्प्लॉयर्स भी बहुत हो गए हैं। आजकल ज़्यादातर तो लीव नहीं मिल पाती लोगों को, वो हाँ, काम पे उनका जॉब फिक्स्ड है, अगर वो नहीं गए तो कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। फिर मेरी नौकरी ना चली जाए, फिर इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ जो आती हैं, तो वो भी कहीं न कहीं रोकती हैं। तो एक हुँ। सोशली एक पैराडाइम बनाना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट्स को भी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हाँ जी। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ 10 से 20 पर 15% जीडीपी अपना इन्वेस्ट करते हैं, पर इंडिया केवल 1 से 2% जीडीपी इन्वेस्ट जी, करता है पब्लिक हेल्थ अच्छा। केयर में। यूएस में प्राइवेट हेल्थ केयर मॉडल है, पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके में पूरा पब्लिक सिस्टम है। तो जो आपको 10 लाख की भी दवाई है, वो भी आपको $5 में मिलती है ओह! और दैट इज़ फॉर एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, एवरी पर्सन हू इज़ अ परमानेंट रेज़िडेंट और अ सिटिज़न ये विदाउट इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके। ओह! सो दे आर ट्रू वेलफेयर स्टेट्स। हम वेलफेयर स्टेट होके टैक्स सबसे ले लेते हैं अच्छा खासा, पर किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट्स को भी सोचना है कि वो बिल्कुल। प्राइवेट हेल्थ केयर की जगह अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर को समझें और लोग भी हेल्थ केयर को रिस्पॉन्सिबली लें। ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबली हेल्थ केयर को ट्रीट करें और जहाँ कूड़ा मिला वहाँ फेंक दिया, थोड़ा सोशली सेंसिटाइज़ हों। तो एक हाँ, एनवायरनमेंट वैसा बनाना पड़ेगा आपको कि गवर्नमेंट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सिटिज़न्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि इनके हेल्थ चेकअप होनी चाहिए, इनको हेल्थ केयर के लिए जाना पड़ सकता है। तो उसकी तरह से लीव्स की भी अलॉटमेंट हो, तो बिल्कुल, ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी की रिलेशनशिप और ट्रस्ट भी बढ़े, बिल्कुल। तो वो भी ज़्यादा परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो एक थोड़ा सिस्टम को वो म्यूचुअली होना चाहिए सबके तो एक बीच में। सिस्टम को मॉडिफ़ाई करने की थोड़ी ज़रूरत है, सो दैट इट बेनिफिट्स एवरीबॉडी। इट हाँ, बेनिफिट्स द गवर्नमेंट, इट बेनिफिट्स एम्प्लॉयर्स, फंडिंग भी करेक्ट जगह जाए गवर्नमेंट की, क्योंकि हेल्थ से अगर कोई आदमी लंबे टाइम तक बीमार हो गया, तो वो वर्कफ़ोर्स जॉइन नहीं कर पाएगा। तो फिर उससे प्रोडक्टिविटी पे, नेशन पे असर पड़ेगा, गवर्नमेंट्स पे असर पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। सर पर जो इसी सिस्टम में क्या इंश्योरेंस भी अपना रोल ठीक से प्ले कर रहा है? इंश्योरेंस अवेलेबल है कैंसर के लिए ठीक से? पहले लोगों में इंश्योरेंस की अवेयरनेस नहीं थी और मुझ में भी नहीं थी। मैंने भी कुछ साल पहले हेल्थ इंश्योरेंसेस लेना शुरू करे, पर आजकल वो एक मस्ट बन गया है, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर है वो इतनी ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, बिल्कुल, ख़ासकर सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर। और प्राइवेट में ही आपको, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं तो आपको प्राइवेट हेल्थ केयर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम नहीं तो बहुत
लग जाएगा एक एक टेस्ट में, एक एक बिल्कुल। चीज़ में। दैट्स अ हार्ड रियलिटी, वट एवर वी मे से। सो आजकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट्स और इम्यूनोथेरेपीज और ये सब का एक कॉस्ट है। तो इफ़ यू आर वेरी रिच इट डजेंट मैटर, बट अगर आप नहीं है तो इंश्योरेंस के प्रति हम अमेरिकन मॉडल की तरफ जाने, जो कि इंश्योरेंस बेस्ड है। बट वो हेल्प कर रहा है ट्रीटमेंट्स में? वो हेल्प कर रहा है ट्रीटमेंट्स में। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे हेल्थ केयर के कॉर्पोरेट्स हमें ऑफर नहीं करते, पर कई एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स हैं जो कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस बिल्कुल। ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। और उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अपने माता-पिता का बहुत अच्छा इलाज करा पा रहे हैं। मतलब वो उन पैसे की कॉर्पोरेट झिझक इंश्योरेंस, चली जाती तो है कई पैसे की बार। झिझक चली जाती है और आप कहते हैं कि जो बेस्ट हो वो करो। वो करो। तो उस वजह से इंश्योरेंस ने एक बहुत, या फिर अगर एक सर्जरी हो सकती है तो सर्जरी मैं टाइम पे करा लूँगा, और जितना इंश्योरेंस का कवर हो गया उतना ठीक है, बाकी मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब में करा बेसिकली लूँगा। आपके लिए एक सपोर्ट मिल गया, एक हेल्पिंग हैंड हो गया। हाँ, हाँ, अगर हाँ। आप सोल अर्नर हो फैमिली के, आपको इंश्योरेंस का एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है कि भाई इतना खर्चा मैं कर लूंगा, इतना इंश्योरेंस हो जाएगा। तो आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है इस ट्रीटमेंट में आगे चलने के लिए। हाँ। तो आई थिंक सर हमारा पूरा पर्पज, एंड आई थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा पर्पज है जो आपने सिस्टम के बारे में बताया, इसके सारे स्टेक होल्डर्स तक अवेयरनेस पहुंचाना, सिटीजन हो वो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, क्योंकि सबके मिलने जुलने के साथ ही ये सिस्टम ठीक से चल पाएगा और ये ट्रीटमेंट सब तक पहुंच पाएगा। So thank you for coming to the show. Thank you for all the information. It was a pleasure talking to you, sir. Thank you very much. It was wonderful as well, for me as well. Thank you very much. Most welcome, sir. Yes.